Make it full screen. Yes. This session is for the students of MBA course, wherein the name of the MBA third semester. The name of the subject is Business Legislation, and today we will be studying Unit 1, that is Indian Contract Act 1872. So, if any student comes to this term or this subject, then there should be certain questions that should come to his or her mind, that why all these legislations, Indian Contract Act, several other acts are there like Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, and few more acts are there like Consumer Protection and Indian Companies Act. These things are there in our syllabus. Then why these things are needed to be studied at the MBA level? Because after clearing or passing the MBA course, one will be hired by the corporates for many roles and responsibilities. In corporates, every now and then on day to day life, we have to face these kind of things like the contract, we have to enter into the contract. There are certain things which are to be sold, certain things which are to be bought. See, appointment of a person on a certain designation is also a kind of contract. Okay, so today we'll be doing the Indian Contract Act and we'll see it in detail. The name of the act is Indian Contract Act 1872, and as per the syllabus, almost everything under this act is covered in our syllabus, like meaning and essential of a valid contract, illegal and void agreements, then consent, then and free consent, then contingent contracts, bailment and pledge is there, then different kinds of agencies, termination of agencies, gaming practical experience that is there. Then so we'll see it step by step. Let us say this act is known as the Indian Contract Act 1872. It is a central act applicable to across India. Now, let us see as per the definition, it should be read in this way. Contract, according to section 2 subsection H, it should be read in this manner, that according to section 2 subsection H, a contract is defined as an agreement enforceable before the law. सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि इन्फोर्सेबल बिफोर द लॉ, मतलब उसको आप कोई सोशल एग्रीमेंट करते हैं किसी के साथ में, या एक फैमिली रिलेशन वाला कुछ एग्रीमेंट होता है, तो दीज एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बिफोर द लॉ. आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है तो दैट पर्सन कैन बी सूड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. अब कॉन्ट्रैक्ट आता है तो कॉन्ट्रैक्ट के पहले आता है एग्रीमेंट. लेट अस सी व्हाट एग्रीमेंट इज. According to section 2 subsection E, every promise or set of promises forming consideration for each other. ऐसा प्रॉमिस जिसमें कि कंसिडरेशन हो फॉर ईच अदर, दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स इन लीगल टर्मिनोलॉजी इट मीन्स द प्राइस. लेट अस से कि मैं एक बिल्डर हूं और मैंने एक फ्लैट बेचने का एक एग्रीमेंट किया है किसी को, एग्रीमेंट टू सेल द फ्लैट. आई एम अ बिल्डर, आई हैव एंड द बायर हैव एग्रीड with me, wherein they want to buy my flat and I want to sell the flat. So in that case, what will happen? The consideration would be the price that is paid by the buyer to the seller would be the consideration for the seller. Similarly, the flat that is bought by the buyer would be
the consideration for the buyer. So this is the consideration. So according to section 2 subsection E, every promise or set of promises forming consideration for each other. Now let us see what promise is. According to section 2 subsection B, when a person made a proposal to another to whom proposal is made, if proposal is assented thereto, इसका मतलब हुआ according to section 2 subsection B, when a person made a proposal, इस सेक्शन के हिसाब से अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को एक प्रपोजल दिया, प्रॉमिस के पहले एक प्रपोजल होता है कि भाई ये प्रपोजल है, ये करना है आपको, another to whom the proposal is made, if proposal is assented thereto, और उस प्रपोजल का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे सामने वाले पार्टी या दूसरे पार्टी को एक्सेप्ट करना होता है या अपना कॉन्सेंट देना होता है, तो then it is called promise. Now let us see next slide please. Let us see what offer is. According to section 2 subsection A, when a person made a proposal, when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something. सेक्शन 2 सबसेक्शन ए बोलता है कि जब आप किसी को प्रपोजल देते हैं तो जिस पार्टी को प्रपोजल, सपोज ए ने बी को प्रपोजल दिया, अब बी क्या करेगा, उस प्रपोजल को जैसा प्रपोजल है उसमें बिना कोई टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चेंज किए हुए क्या है, सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, मतलब उस ऑफर को या तो वो एक्सेप्ट करेगा या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही है ऑफर, मतलब आपने ऑफर दिया, किसी ने ऑफर दिया दूसरे को, तो दूसरा पार्टी क्या करेगा, या तो वो ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड ऑफर। सो एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट कब आपका ऑफर में हो जाएगा, एग्रीमेंट में क्या है, प्लस, अगर ऑफर है प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर आपने किया और वो ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाता है देन इट बिकम्स एग्रीमेंट। नाउ लेट अस सी कंसेंसस एट आइटम, व्हाट इट इज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, मीटिंग ऑफ माइंड्स और identity of minds or receiving the same thing in the same sense at the same time। देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट कब होता है फुलफिल, जब आप किसी को कोई ऑफर करते हैं एग्रीमेंट करने के लिए, तो आप जो चीज ऑफर कर रहे हैं उसी सेम टर्म्स एंड कंडीशन में सामने वाला जो है जिसको आप ऑफर कर रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करता है। तो मीटिंग द माइंड्स इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब आपने जिस सेंस में उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को आपने सामने वाले को दिया है वो भी उसी सेंस में उसको समझ करके एक्सेप्ट करेगा, तभी वो जो है एग्रीमेंट है वो फुलफिल हो पाएगा। और उसी को बोलते हैं कंसेंसस एट आइटम। क्या बोलते हैं, मीटिंग द माइंड्स इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर दोनों का माइंड, प्रपोजर और प्रपोजी, ऑफरर और ऑफरी, दोनों का माइंड एक जैसा रहेगा उस टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर, तभी वो जो है कंसेंसस एट आइटम कहलाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस सी, देखिए आप एग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, एग्रीमेंट है एंड लीगल ऑब्लिगेशन। ऐसा एग्रीमेंट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ये भी हो लिखा हुआ कि भाई आप अगर नहीं मानते हैं ऐसा चीज तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख लीजिए, एक बॉक्स है हमारा जो कि एग्रीमेंट का है, दूसरा बॉक्स है लीगल ऑब्लिगेशन का। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कि लीगल ऑब्लिगेशन भी है, बीच में इंटरसेक्शन है, और ये जब दोनों चीज मिलता है तब कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जितना कॉन्ट्रैक्ट है सब का सब एग्रीमेंट है, लेकिन सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बिफोर लॉ। लॉ, कानून में उसको आप
दावा पेश कर सकते हैं या उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, ये उसमें इन्फोर्सिबिलिटी टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट स्लाइड। Now let us see the essential elements of a valid contract. Section 10, Section 10 डिफाइन करता है, टोटल 9 to 10 कंडीशंस है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नाउ नंबर 1 इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई ना कोई एक ऑफर आना चाहिए, एंड उस ऑफर को सेम सेंस और सेम टाइम पर एंड सेम सेंस में आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट एक्सेप्टेंस शुड बी देयर। अगर आपसे एक्सेप्ट नहीं किए तब तो सिर्फ ऑफर रह गया, अनएक्सेप्टेड ऑफर रह गया। लेकिन आपने ऑफर, जैसे मान लीजिए एमबीए करने के बाद कोई कंपनी आपको एक ऑफर लेटर देती है, और उस ऑफर लेटर में ये सब लिखती है कि भाई हमारा ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इतने बजे आना होगा, इतने बजे जाना होगा, इतना छुट्टी मिलेगा साल में, इतना आपको सैलरी मिलेगा, ऐसे प्रमोशन का है, ऐसे आपको टर्मिनेट किया जाओगे, ये सब सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है। आपने अगर साइन कर दिया और उसमें कहा गया कि 10 दिन के अंदर साइन करके भेज दीजिए, आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया, तो दैट देन यू हैव एक्सेप्टेड एंड यू शुड बी अबाइडेड बाय दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो दैट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नाउ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑफर दे दिया बस बात हो गया खत्म। जो ऑफर दे रहा है उसका ये होना चाहिए कि भाई सामने वाला अगर ऑफर का कंडीशन को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए, तब वो होगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कंसेंसस एट आइटम व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि मीटिंग ऑफ द माइंड्स इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। जब भी आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कंपनी के लिए क्या कंसिडरेशन होगा जी? कंपनी को आदमी मिलेगा, हो गया कंपनी के लिए कंसिडरेशन। आपके लिए कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? आपको एक जॉब मिलेगा, एक नौकरी मिलेगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगा, एक करियर एंड फ्यूचर मिलेगा। सो दीज थिंग्स आर द कंसिडरेशन फॉर यू। नाउ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर सर्टेन conditions which needs to be fulfilled to become eligible to enter into a contract. कैपेसिटी क्या है? कोई भी पागल आदमी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? आदमी ठीक ठाक होना चाहिए, दिमाग जिसका ठीक है। अब माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी माइनर है जिसका एज कम है 18 साल से, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो नहीं हो सकता है, और उसके अलावा कौन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? पर्सन शुड बी मेजर, पर्सन शुड बी साउंड माइंड, ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड, ओके, ही शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ, कंट्री के द्वारा उद्देश्य द्रोही उसको डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ये सब है, ये हम लोग आगे देखेंगे। नाउ फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट 7th पॉइंट है हमारा, सॉरी 6th पॉइंट है, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट का मतलब कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं किसी पार्टी के साथ में, तो वो कॉन्सेंट जो है ना, वो आपका, वो किसी दबाव के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ए ने बी को कहा कि तुम सी से शादी करो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। तो अब क्या करेगा? बी सी से शादी करेगा। क्यों करेगा? कि डर के मारे, नहीं किया उससे शादी तो वो हमको गोली मार के उड़ा देगा भाई। सो देयर शुड बी फ्री कॉन्सेंट, मतलब फ्री होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए, ये नहीं कि डर से कर रहे हैं, कोअर्सन नहीं होना चाहिए। अब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल होना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 4 आदमी मिल करके एक गैंग बनाते हैं और चलिए कहीं बैंक में या कहीं पर डाका डालते हैं, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं 4 लोग कि भाई चलो फलाने बैंक में डाका डालेंगे और डाका डाल के जो पैसा आएगा उसको हम लोग बांट लेंगे। और मान लीजिए उसमें एक ऐसा निकला, चारों में से एक ऐसा चोर निकला कि वो सब पैसा लेके भाग गया, तो उसके खिलाफ केस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट इलीगल है। लेकिन अगर आप
लीगल ऑब्जेक्ट के साथ साथ काम करते हैं तो केस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि किसी एलियन के साथ में, इस तरह का नहीं होना चाहिए कि भगवान आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसा मान लीजिए कंडीशन है कि भगवान आ जाए, तुम भगवान को ला दो तब मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, या इस तरह से, या भूकंप में जब मान लीजिए आपका सिटी तबाह हो जाए तो मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, इस तरह का नहीं होना चाहिए। सो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि वो है कि नहीं। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now there are certain types of contracts are there, like valid contracts. Okay, so what are the valid contracts? Absolute contract, contingent contracts, that comes under from section 31 to 36. Then express contract, then implied or quasi contract. Okay, we will see it later on. Next slide, please. So let us see what is a valid contract. If all the conditions are fulfilled, it is called a valid contract. So what are the conditions that needs to be fulfilled? The conditions are that I have discussed under section 10. Okay, वो जो 9 condition है, वो condition अगर सारा condition fulfill है, then it is a valid contract. So what are the conditions? Number 1, offer and acceptance. Number 2, intention to create legal relationship. Number 3 is consensus ad Adam. Number 4 is consideration. Number 5 is capacity to contract. Number 6 is free consent. Number 7 is legality of object. Number 8 is possibility of performance. And number 9 is writing and registration. ये सब सारा अगर कंडीशन फुलफिल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नेक्स्ट है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। So in a contract, to do or not to do something, if an event is collateral, does or doesn't happen. देखिए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब हुआ कि कुछ आप मान लीजिए कि ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं टू डू और नॉट टू डू, सब कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि कुछ नहीं करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं करने के लिए, और एक होता है कि करने के लिए। इफ एन इवेंट इज कोलैटरल, डज और डजंट हैपन। अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। अगर आप कहते हैं कि चाइना से जो शिप आ रहा है, मान लीजिए शिप में बहुत सारा लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, शिप में मान लीजिए 50,000 लैपटॉप आ रहा है, चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। अब ए बोलता है बी को कि अगर तुम ये जहाज, पानी वाला जो जहाज में शिप में आ रहा है लैपटॉप, उसको वो अगर डूब जाए जहाज, इफ द शिप गेट्स सिंक, ओके, और sunk in the sea, then I will pay you 1 लाख रुपीज। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वही ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस कॉन्ट्रैक्ट में वो 1 लाख या 50,000 रुपया देना वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। मतलब वो जहाज पानी में डूब जाएगा तब ए जो है बी को 1 लाख रुपया देगा, और डूब करके जहाज खत्म हो जाएगा, लैपटॉप खत्म। तो ये सिचुएशन हो भी सकता है, ये सिचुएशन नहीं भी हो सकता है। तो happens or does not happen, this is what they are saying. Now express contract, when contracts are either in writing or in oral, जब कॉन्ट्रैक्ट्स का टर्म्स एंड कंडीशन लिखित में रहता है तो वो क्या हो गया, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा चीज बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, अब उस कॉलेज का जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है भैया, उसको आपने देख करके ये कॉन्ट्रैक्ट में उसमें लिखा हुआ है इतने बजे आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, बुक्स लाना है, पढ़ना है, 75% अटेंडेंस करना है, तब एग्जाम में बैठे, ये सब है ना, मान लीजिए है, ये सब रूल है, ठीक है, आपने उस पर साइन किया है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में, मतलब एडमिशन फॉर्म में, तो यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो दैट इज द एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसको आपने पढ़ा और पढ़ के साइन किया। अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। So in that implied contract, what happens?
The conditions are understood, taken as understood. For example, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, लेट अस से कि आप बस से कलकत्ता से जमशेदपुर आ रहे हैं। अब कलकत्ता से जमशेदपुर ये तो बड़ा डिस्टेंस हो गया, मान लीजिए छोटे डिस्टेंस का ही कहते हैं। टेल्को से आप साक्षी आ रहे हैं, टेल्को से बिष्टुपुर जा रहे हैं। तो जब आप बस में बैठते हैं तो ये माना जाएगा कि आप बस में टिकट लेके बैठे हुए हैं, ये नहीं कि विदाउट टिकट जाके बैठ गए हैं बस में। तो उसको कहा जाता है इट इज अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड दी when the contracts are neither in writing nor in oral, it is called implied contract. Now absolute contract, a contract which is not dependent on fulfillment of condition, किसी कंडीशन के होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Next is invalid contracts. Now there are certain contracts which are invalid. So let us see what are they. Number one is void contract. Number two is void ab initio. ठीक है, तो void ab initio को becomes void, मतलब void भी कहा जाता है। Then voidable contract, illegal contract, unenforceable contract, इसको देखेंगे हम लोग आगे। Next slide. Let us see invalid contract. Contract, if any one condition is not fulfilled, that is invalid contract. अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए 10 कंडीशन है, ठीक है, जैसे 9 कंडीशन ने बताया, डिस्कस किया अंडर सेक्शन 10, तो 10 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो दैट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। इज void ab initio, मतलब an agreement which is not valid from the beginning, शुरू से ही कोई ऐसा एग्रीमेंट जो वैलिड नहीं है उसको बोलते हैं void ab initio, ठीक है। नेक्स्ट है becomes void, एक होता है कि वो मतलब void ab initio मतलब शुरुआत से ही वो एग्रीमेंट void नहीं है, वैध नहीं है, ठीक है, शुरुआत से ही। और एक होता है कि शुरू में वैध था, शुरू में ठीक था, बाद में जाकर के वो खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल बिकम्स वॉइड एन एग्रीमेंट विच इज वैलिड इन द बिगिनिंग, शुरुआत में तो ठीक ठाक था भाई, वैलिड इन द बिगिनिंग, बट ड्यू टू सम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कुछ ऐसा कंडीशन अराइज हुआ लेटर ऑन जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाया, सो बाद में बिकम्स वॉइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Next one is voidable contract. Now, a contract which is valid unless until avoided by either the party. पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड है जब तक कि कोई दूसरा पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्टी है उसके द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को अवॉइड नहीं किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। सो एन एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ, कानून के द्वारा कुछ ऐसा चीज, जैसे मैंने बताया कि 4 लोग मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई चोरी करेंगे, सो दीज एक्ट्स आर फॉर लॉ। सो एन एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ इज अ illegal अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो अनइनफोर्सेबल मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि होता है ऐसा कोई चीज जिसको कि फोर्स किया जा सके, कानून के द्वारा फोर्स किया जा सके, और जिसको नहीं किया जा सके उसको अनइनफोर्सेबल। इट इज वैलिड बट ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड इन केस डिफेक्ट्स आर रिमूव्ड। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए होता है ना कि भाई मान लीजिए 100 रुपया का स्टाम्प पेपर पे आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा रहे हैं, तो आपने क्या किया, 20 रुपया का स्टाम्प पेपर पे आपने किया है, तो वो डिफेक्टिव हो गया आपका, ठीक है, वो नहीं एक्सेप्ट होगा, डिफेक्टिव हो गया। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपने साइन गलत कर दिया या साइन किया ही नहीं, तो इस सब के कारण से वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट अनइनफोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
Now there are certain other types of contract apart from that voidable contract, void contract, forcible contract, unforceable contract, or certain other contracts are there like executed contract, executory contract, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बायलेटरल। सबसे पहले एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अदर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कि एग्जीक्यूट किया जा चुका है, मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए कि आपको कंपनी ने ऑफर किया कि भाई इतना तारीख तक 10 तारीख तक ज्वाइन कर लो। आपने क्या किया कि 9 तारीख को ही ज्वाइन कर लिया कंपनी में, यानी कि आपने एक्सेप्ट किया उस टर्म्स एंड कंडीशन को, ऑफर को, और करके आपने ज्वाइन कर लिया। तो ऑलरेडी वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, सो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए क्या है, कंपनी को ऑफर देना था, इंटरव्यू के बाद आपको कंपनी ने आपको ऑफर दे दिया और बोला है कि भाई आप 15 तारीख तक ज्वाइन कीजिए। तो कोई है कि 10 तारीख को ही ज्वाइन कर लिया और कोई है कि 15 तारीख तक वेट कर रहा है, और वो ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा उसके मन में थोड़ा डाउटफुल है। सो वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मैंने टू बी एग्जीक्यूटेड, नॉट येट बीन एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। नाउ यूनिलैटरल एंड बायलैटरल। यूनिलैटरल मतलब होता है एक तरफा, ठीक है। अब इंटरव्यू के बाद कंपनी को ऑफर लेटर देना था, तो कंपनी ने तो अपना वादा निभा दिया, भाई आपको ऑफर लेटर सेलेक्ट करके दे दिया, कंपनी को आप अच्छे लगे, कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया। सो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आप जो है अभी भी दुविधा में है, ज्वाइन करें कि नहीं करें, तो यही होगा यूनिलेटरल। अब बायलेटरल में क्या होता है, दोनों साइड से पार्टी एक्सेप्ट कर लेता है, तो हो गया बायलेटरल। सो बेसिकली बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोथ आर more or less same or interchangeable. Please go to the next slide. So let us see executed contract. In a contract where both the parties have performed their obligations, there is remaining nothing to perform. दोनों पार्टी को जो करना था, कंपनी ने ऑफर लेटर दिया तो दे दिया, आपने ज्वाइन कर लिया तो बात हो गई खत्म, अब तो ज्वाइन कर लिया, अब तो सैलरी मिलेगा, अब क्या काम करो भाई। तो यही हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। जो टर्म्स एंड कंडीशन था कि 10 तारीख को ज्वाइन करना, आपने कर लिया तो एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बोथ द पार्टीज आर येट टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। मतलब कंपनी, आप इंटरव्यू हो गया है ना, तो कंपनी ने ऑफर लेटर इशू किया है और ना आपने ज्वाइन किया है, तो आप ज्वाइन कैसे कीजिएगा, कंपनी ऑफर लेटर देगी तब तो। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड executory contract. Now next one is unilateral contract. In a contract where one party has performed his obligation and the other person is yet to perform his obligation. एक पार्टी ने, जो दो पार्टी है उसमें से एक पार्टी ने अपना पार्ट जो है उसका वो कर दिया। मान लीजिए आप बिल्डिंग बनाने का ठेका दिए हैं, आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई मेरा ये जमीन है, इस पे आप बिल्डिंग बना दो, ठीक है। तो आपने जो दिया है, तो आपने क्या किया, लैंड दे दिया उसको, ठीक है, लैंड का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया उस बिल्डर को कि लो भाई इसमें आप बिल्डिंग खड़ा करो। तो आपने तो दे दिया, लेकिन बिल्डर ने क्या किया है, अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है। तो आपने अपना ऑब्लिगेशन कर दिया, लेकिन ही हैज नॉट येट इवन स्टार्टेड। नेक्स्ट, in a contract where both the parties have performed their obligation bilateral. So अब बायलेटरल में क्या है कि दोनों पार्टी अपना अपना कंडीशन को, आपने बिल्डिंग बनाने का ठेका दे दिया, अपना लैंड दे दिया उसको, बिल्डर को, बिल्डर ने क्या किया, लैंड को ले भी लिया और वहां काम भी चालू कर दिया। सो ये हो गया बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, ऑफर। नाउ लेट अस सी व्हाट ऑफर इज। Go to the next slide. So according to section 2 subsection A, when a person made a proposal, when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something.
So section 2 subsection A of the Indian Contract Act 1872 says that when a person, अगर कोई पर्सन ने आपको कुछ प्रपोजल दिया है और आपने क्या किया, उस प्रपोजल को आपने उस पर सहमति दिया है अपना, या आपने उस पर में असहमति दिया है। किसी ने आपको कुछ प्रपोजल दिया और आपने, अब देखिए क्या है, ए ने बी को एक शादी का प्रपोजल दिया कि भाई ऐसा कि शादी करने का प्रपोजल दिया। अब क्या है, शादी के प्रपोजल में बी क्या करेगा, या तो उस प्रपोजल पे सहमति देगा कि हाँ भाई लड़का लड़की पसंद है, ठीक है चलो शादी करते हैं, ठीक है, एक दो फैमिली है, ए फैमिली एंड बी फैमिली, तो या तो उस पर सहमति देगा या फिर क्या बोलेगा, लड़का लड़की में ठीक है मैच ठीक नहीं हो रहा है, असहमति देगा। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द ऑफर। So in business organization also these things happen. I am the manufacturer of, let's say, of any product, let's say laptop. I have come to you, sir, you being an organization, government organization, you are in need of laptop, 100 laptops or 500 laptops, ठीक है, और स्कूल कॉलेज, सर यू रीड 600 laptops, so I am the manufacturer or the distributor of HP laptops, so kindly these are my quotations, so kindly give me the tender. So this is the offer. So what will you do as a college? Either you will accept it or do not accept it. So this is basically called the offer. Next slide. Now there are certain types of offers are there. So what are those? Express offer, implied offer, specific offer, general offer, cross offer, counter offer, and standing offer. So total 3 to 5 to 7 offers are there. 7 types of offers. Next slide, please. Please move to the next slide. अगले स्लाइड में जाइएगा। Yes. So let us see what is express offer. When offer is given to another person either in writing or in oral, जब आप किसी दूसरे पार्टी को कुछ ऑफर करते हैं कि भैया ये ऑफर है, या तो लिखित में, ठीक है, या ओरल बोल करके ऑफर देते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। अब देखते हैं कि इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। व्हेन ऑफर इज गिवन टू अनदर पर्सन नाइदर इन राइटिंग नॉर ओरल, ना तो लिखित में दे रहे हैं ना ओरल दे रहे हैं दूसरा पार्टी को, तो उस ऑफर को क्या कहते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। ऐसे ही ऑफर दे रहे हैं लेकिन लिखित में नहीं दे रहे हैं भाई, ओरल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑफर है, ठीक है, तो वो ऑफर को कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, when offer is given to a specific person। अब मैं स्पेसिफिक पर्सन, मान लीजिए कि अभी आप किसी कॉलेज में जाते हैं एमबीए में एडमिशन करने के लिए, ठीक है, अब उसका ये है कि भैया जो जिसका थ्रू आउट, उस एक कंडीशन इमेजिन करते हैं, जिसका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है और मैंने 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक फर्स्ट क्लास है, साथ ही साथ उसने कैट में लेट अस से मोर देन 98% स्कोर किया है, उसको हम फीस में 30% का डिस्काउंट देंगे, टोटल फी में 30% का डिस्काउंट दे देंगे। सो अब वो आदमी जिसके पास ये सब सारा क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, वो 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक 60% भी है और कैट एग्जाम में उसने लेट अस से मोर देन 98 परसेंटाइल इन कैट स्कोर्स, दे गिव यू द परसेंटाइल, उतना परसेंटाइल भी लाया है। अब वो XYZ कॉलेज में जाके एडमिशन के लिए फॉर्म भरता है, तो बोलता है भैया ये तो आपका ऑफर है, तो ऑफर में हमको लीजिए एडमिशन और 20% का डिस्काउंट दीजिए। सो दिस टाइप्स ऑफ ऑफर्स आर कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। दैट offer is not available to everybody who are willing to take admission into MBA course. So that is called the specific offer. Now general offer. अब general offer क्या है? When offer is given to entire world at large. अभी मैं बताता हूँ कि आप मान लीजिए मॉल में जाते हैं, ठीक है,
बाय वन गेट वन, बाय टू गेट टू, ये डिस्प्ले में लगा हुआ है, या कुछ ऐसा चीज है कॉलगेट पे 30% डिस्काउंट, हाँ, या साबुन पे, हाँ, 10% का डिस्काउंट, सो दैट डिस्काउंट इज फॉर एवरीबडी, जनरल पब्लिक कोई भी खरीद सकता है, सो दैट काइंड ऑफ ऑफर. There is a very popular case, that is Carlin versus Carbolic Smoke Ball Company, and I expect the student to read this case themselves. So that is the general offer. Next slide. Now there is cross offer. What is cross offer? It is basically when both the parties are making identical offers to each other in ignorance of others offer. आप देख लीजिए एक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, एक सिचुएशन, ठीक है, कि आप किसी पार्टी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, माने उसको आप ऑफर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन वो कंपनी के पास भी कुछ ऐसा है जो आप खरीद सकते हैं, तो वो भी आपको कुछ ऑफर कर रहा है. तो ये क्या है, ना तो आप जानते हैं कि वो उसका परचेज डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे आया हुआ है, और ना ये जान रहा है कि मेरा परचेज डिपार्टमेंट आपके यहाँ गया हुआ है. तो इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर दे आर एंटरिंग, दे आर मेकिंग आइडेंटिकल ऑफर्स टू ईच अदर, ठीक है, identical offers they are making to each other in ignorance of each other's offer. That is called cross offer. Now next is counter offer. When both the persons are making offers to each other which are not identical in ignorance of others offer. अब counter offer में क्या होता है कि तुमने मुझे ये ऑफर किया तो मैं भी तुमको ये ऑफर करता हूं, और दोनों जानते हैं एक दूसरे का कि मैं भी इसको ये ऑफर कर रहा हूं, वो भी मुझे ये ऑफर कर रहा है. इस केस में जानते हैं, क्रॉस ऑफर के केस में नहीं जानते, लेकिन काउंटर ऑफर के केस में जानते हैं. नाउ स्टैंडिंग ऑफर, एन ऑफर which remains continuously enforceable for a certain period of time. एक ऐसा ऑफर आपको कुछ किया गया, मान लीजिए कि 10 तारीख तक, अगले महीने के 10, 8 या 5 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं बीबीए कोर्स में इन अ पर्टिकुलर कॉलेज, या आप अपने ही कॉलेज में किसी कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, तो उसको मान लीजिए कि 2% या 5% का छूट मिलेगा, ये एक ऑफर है. सपोज अगर है तो ये ऑफर है, तो क्या हो गया, दिस टाइप ऑफ ऑफर इज स्टैंडिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब आज ही ले लीजिएगा एडमिशन तो भी 5% का मिलेगा, 5 तारीख तक ले लीजिएगा एडमिशन अगले महीना का तो भी मिलेगा, लेकिन 6 तारीख को ये ऑफर नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 को लास्ट डेट है और 5 तारीख को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा. सो दिस काइंड ऑफ ऑफर इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर. ओके, नाउ next slide. So legal rules for offer. What are the legal rules for making an offer? Number one is offer must be given with an intention to create a legal relationship. ऐसा नहीं कि भाई ऐसे हंसी मजाक में ऑफर कर रहे हैं कि ये ऐसा कर लो, ऐसा नहीं. Offer must be made to create a legal, with an intention to create legal relationship. बहुत फेमस केस है बालफोर वर्सेस बालफोर. ठीक है, अब मैं एक सिचुएशन बताता हूं. ये केस में ऐसा सोच लीजिए कि ऐसा था, या यही था एग्जैक्टली, कि मिस्टर मिस्टर बालफोर मिसेज बालफोर को लेकर के कोई एक सिटी में गए बाहर में, और वहां पर अपनी वाइफ को इलाज कराने के लिए वो रुके, 1 महीना तक रुके, वहां पर रहे, ठहरे और अपनी पत्नी को इलाज करवाया. बट ऑन द एडवाइस ऑफ द हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स, मिसेज बालफोर had to stay for some more time, for next month or next 2 to 3 months also. So in the first month, the maintenance of wife for medical treatment, for her, fooding and lodging and staying in that city or in the hospital, everything was borne by the husband, Mr. Balfour.
and now due to work he had to return to his own place. मिस्टर बालफोर को अपना जगह पे अब रिटर्न होना पड़ा है और मिसेज बालफोर को वहीं पर छोड़ करके, क्योंकि वो अपने यहाँ जा अपने घर पे जाएंगे तो वहां जाके काम करेंगे. बट ही हैड मेड अ प्रॉमिस टू हिज वाइफ दैट आई विल बी सेंडिंग मंथली मेंटेनेंस ऑफ this much amount, let us say 30 pound every month I will be sending you, okay. But for next month he sent that 30 pound to his wife for her maintenance. But from the subsequent months, what he did, he failed to pay his wife that maintenance of 30 pound. So now the situation in that case, his wife, what she did, she filed a suit against her husband that my husband, Mr. Balfour, promised me that he would be paying 30 pound every month for the maintenance of mine and for treatment of mine in this city. But now he is refusing to do so, and she filed a case. So later on in the decision, that case was not sustainable in the eyes of law. Why? Because it is not created with an intention to create legal relationship. ये एक पर्सनल लेवल का हो गया, एक हो गया फैमिली और पर्सनल लेवल का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है. सो ऑफर मस्ट बी गिवन विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. द केस इज बालफोर वर्सेस बालफोर. नाउ ऑफर मस्ट बी डेफिनिट. ये नहीं कि इनडेफिनिट चीज के लिए कुछ भी आप ऐसे ही कर दे रहे हैं. ऑफर एकदम डेफिनिट चीज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है. There is a clear cut difference between offer, invitation to offer and invitation to sale. ये जो तीन चीज है ना, offer and invitation to offer and invitation to sale. ज्यादा डिटेल्स में आपको जानना है तो प्लीज गो थ्रू दिस केस हैरिस वर्सेस निकलसन. Now offers must be communicated. किसी को आप ऑफर दे रहे हैं तो उसके बारे में उसको कम्युनिकेशन करना चाहिए आपको, या उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको हम ये ऑफर दे रहे हैं. जैसे मैंने शादी का बताया एग्जांपल, तो लड़के वाली को या लड़की वाले को बताना होगा कि भाई वी आर इंटरेस्टेड इन योर वी आर इंटरेस्टेड फॉर आवर गर्ल मैरिज प्रपोजल विद योर बॉय. दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड. दिस ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड. Okay, so communication must be there. So for this you need to read this case, Fitch versus Snedeker. Now mere statement of price of a price is not an offer. Now Harvey versus Fisher. आप जाते हैं मॉल में या कहीं जा रहे हैं आप, वहां पे लिखा हुआ है कि मान लीजिए एक ट्राउजर है, ठीक है, 200 रुपया में, उसका प्राइस टैग है. दैट इज नॉट एन ऑफर. Okay, but if it is an offer like buy one this thing trouser and get two trousers, so that is the offer. But see, mere statement of price, if it is written each trouser is priced or is available at rupees, let's say 300 per trouser, that is mere an statement. It is not an offer. So don't be confused with offer and this invitation to offer and price. So with this we are ending today's session, and tomorrow or whenever the next class is there we will start with the acceptance. Okay, thank you.